یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک حلوائی کی دکان، یہ مٹھائی کی دکان پہ جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے بشیر، جس کی وہ دکان ہے. جب بشیر حلوائی نے بادشاہ کے سامنے ایک دن میں 1000 کلو مٹھائی تیار کر کے ڈھیر لگایا تو سب حیران رہ گئے، مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ اس حیرت انگیز کارنامے کے پیچھے ایک بڑا خفیہ راز چھپا ہے. وہ راز کیا ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا. یہ بشیر حلوائی کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ جس نے ایک دفعہ بشیر کے ہاتھ کی مٹھائی کھائی، اس دکان کی مٹھائی کھائی، وہ کہیں اور سے نہیں کھا سکتا. اتنی لذیذ بنانے والا ماسٹر. انمول ہارر کے ناظرین کے لیے آج ہم پاکستان کے معروف داستان گو سلیم شیخ، جو کہ شیخ صاحب کے نام سے مشہور ہے، کی بیان کردہ ایک سنسنی خیز ڈراؤنی کہانی اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں. اب گاؤں والوں کو اس بات کی بھی حیرت ہے کہ بشیر اس دکان پہ ہے اکیلا، کوئی لیبر نہیں. یہ واقعہ تقریباً 500 برس پرانا اور مغلیہ دور کا ہے. ہمارے اسی خطے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حلوائی یعنی مٹھائی والے کی دکان تھی. یہ مٹھائی کی دکان کا مالک بشیر نامی ایک شخص تھا. اس مٹھائی والے بشیر کی شہرت دور دور تک تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ جس نے بشیر مٹھائی والے کے ہاتھ کی بنی مٹھائی کھا لی وہ کسی اور جگہ سے مٹھائی نہیں کھاتا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی لذیذ تھی. بعض اوقات اس گاؤں والوں کو اس بات پر بہت حیرت ہوتی تھی کہ بشیر کی دکان میں بشیر کے علاوہ کوئی ملازم یا مددگار نہیں ہوتا، تو بشیر خود کیسے ساری مٹھائی تیار کر لیتا ہے اور دکان پر سجا کر فروخت بھی کر دیتا ہے. گاؤں والے جو ہیں یہ سوچ کے حیرت میں ہیں کہ ہم نے کبھی اس کی دکان میں سامان اترتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی مٹھائی بنانے والا مٹیریل چینی، میدا اور ڈرائی فروٹ وغیرہ اترتے بھی نہیں دیکھے گئے. یعنی دکان کے اندر ہی مٹھائی تیار ہو کر سجا دی جاتی تھی اور اکیلا بشیر ہی پورے گاؤں کو مٹھائی فراہم کر رہا تھا. بہرحال انہی دنوں اس خطے کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی منعقد ہونے جا رہی تھی. بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے پورے خطے کے لوگوں، جس میں کئی ریاستیں اور گاؤں دیہات آ جاتے تھے، مٹھائی بانٹنے کا منصوبہ بنایا. یہ منصوبہ بادشاہ نے اپنے وزیروں کے سامنے پیش کیا اور ان کو حکم دیا کہ کل مجھے 1000 کلو گرام مٹھائی چاہیے اور وہ ساری مٹھائی پورے گاؤں سمیت ارد گرد کی ریاستوں اور دیگر علاقوں کے لوگوں کو تقسیم کی جائے گی. چنانچہ وہ وزیروں کو کہتا ہے کہ جا کر 1000 کلو گرام مٹھائی لے کر آؤ تاکہ میں کل یہ تقسیم کرواؤں. ایسے میں ایک وزیر سامنے کھڑا ہو کر بادشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ حضور، ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. ہماری اسی ریاست کے ایک گاؤں میں بشیر نامی حلوائی موجود ہے جس کی مٹھائی دور دور تک پسند کی جاتی ہے اور اس کی مٹھائی جیسا ذائقہ کسی اور کے پاس موجود نہیں. بادشاہ اس وزیر کی بات پر مسکرا کر کہتا ہے کہ ارے بے وقوف، میں نے 1000 کلو گرام مٹھائی خریدنے کا بتایا ہے. مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہ بشیر حلوائی اتنا محنتی ہے کہ وہ آپ کے حکم پر 1000 کلو گرام مٹھائی تیار کر لے گا. اس بات پر بادشاہ بولا کہ پھر مجھے کل دوپہر 12 بجے تک 1000 کلو گرام مٹھائی چاہیے، اور اگر تم 1000 کلو گرام مٹھائی اس حلوائی سے نہ بنوا سکے تو تمہاری اور اس بشیر حلوائی کی گردن اڑا دی جائے گی. سر اتار دوں گا تمہارا بھی اور اس بشیر حلوائی کا بھی جس کا تم نام لے رہے ہو، اگر مجھے مٹھائی نہ ملی. چنانچہ وزیر نے اجازت لے کر دربار سے رخصت لی تاکہ بشیر حلوائی کو 1000 کلو گرام مٹھائی تیار کرنے کا آرڈر دے سکے. وزیر فوری طور پر بشیر حلوائی کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کی بیٹی کی شادی ہے اور اس خوشی کے موقع پر انہوں نے 1000 کلو مٹھائی بانٹنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بشیر نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہہ رہا مجھے یہ بتائیے آپ کو کب چاہیے. اس نے کہا کل 12 بجے تک دے دو. کہتا ٹھیک ہے مل جائے. وزیر حیرت میں ہے کہ اس کے چہرے پہ کوئی بل نہیں ہے، اس نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ مل جائے گی. وزیر اس جواب پر حیرت زدہ ہو گیا اور مزید کہنے لگا کہ اگر کل دوپہر تک 1000 کلو مٹھائی تیار ہو کر بادشاہ کے دربار تک نہ پہنچی تو وہ میرا بھی سر قلم کروا دے گا اور تمہاری بھی گردن اڑا دی جائے گی. بشیر حلوائی نے مسکرا کر جواب دیا کہ وزیر صاحب آپ پریشان مت ہوں، ہم دونوں کے سر سلامت رہیں گے، کل آپ مٹھائی لینے آ جانا. وزیر نے بشیر حلوائی کو ایڈوانس ادائیگی سونے کی اشرفیوں کی صورت میں کر دی اور اگلے روز کا وعدہ لے کر چلا گیا.
अगले रोज दिन के आगाज में ही वजीर को बेचैनी सी महसूस हुई कि बहुत बड़ा ऑर्डर है क्या, बशीर हलवाई उसे तैयार कर भी पाएगा कि नहीं। इसी बेचैनी में वजीर अपने 2 मातहतों के हमरा ऑर्डर के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 1 घंटा कबल ही बशीर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। दुकान के पास जाकर वजीर ने देखा कि दुकान के बाहर मिठाई वाले टोकरों का ढेर लगा हुआ है। वजीर ये सब देखकर हैरान हो गया कि बशीर मिठाई वाला ने तमाम मिठाई टोकरों में सजाकर दुकान के बाहर ढेर लगाकर रखी हुई है। यानी बशीर हलवाई ने वादा के मुताबिक 1000 किलो मिठाई 12 बजे दोपहर से पहले ही तैयार कर रखी है। वजीर की हैरत आसमानों की बुलंदी को छू रही थी। दुकान के अंदर गया, बशीर को बुलवा, बोले हाँ भाई ऑर्डर तैयार है। तो बशीर ने उससे कहा, आपने बाहर देखा नहीं, ऑर्डर तो तैयार है। आपकी हमारी जबान 12 बजे की थी, लेकिन मैंने आपका ऑर्डर 11 बजे तैयार कर दिया। वजीर बहुत खुश हुआ, सारी मिठाई उठा कर ले गया। वजीर जब मिठाई लेकर दरबार पहुंचा तो बादशाह भी हैरान हो गया कि 1000 किलो मिठाई तैयार होकर वक्त मुकर्रर से पहले पहुंच भी गई। बादशाह ने तजस्सुस में पूछा कि ये सारी मिठाई किधर से लेकर आए हो। वजीर ने बताया, बोला हुजूर मैंने आपसे कहा था ना वो बशीर हलवाई अपने गांव का, वो बना देगा, तो ये मैं वहीं से लाया हूं। बादशाह को यकीन ही न आया। उसने मजीद सवाल किया कि बशीर हलवाई के पास कितने मुलाजिम हैं। वजीर ने जवाब दिया कि हुजूर यही तो खास बात है कि हमने बशीर की दुकान में कोई और शख्स देखा ही नहीं, यानी वो सब काम खुद अकेला करता है। बादशाह को ये सारी बात बहुत ही अजीब लगी। उसने हुक्म दिया कि गांव के किसी बहुत ही नेक आलिम शख्स को लाया जाए। चुनाचा गांव के एक नेक आलिम को बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने आलिम को हुक्म दिया कि तुम अपने इल्म से ये पता लगाओ कि ये जो 1000 किलो मिठाई आई है ये किसने तैयार की है। आलिम ने इस बात की खोज लगाने की हामी भर ली। इसके बाद आलिम और वजीर दरबार से रुखसत हुए। इसके बाद वजीर और आलिम बशीर की दुकान के बाहर पहुंचे। आलिम ने वजीर से दरियाफ्त किया कि वाकई यही वो दुकान है जिधर से मिठाई खरीदी गई। वजीर ने जवाब दिया, बिल्कुल यही वो दुकान है जिधर से 1000 किलो मिठाई बनवाई गई है और बशीर हलवाई ने अकेले वो सब मिठाई तैयार की। आलम भी हैरान हुआ कि इतनी छोटी सी दुकान पर इस कदर ज्यादा तादाद में मिठाई कैसे तैयार की गई। खैर, आलिम ने एक मंसूबा बनाया कि ये दुकान इतवार को बंद होगी तो इसके अंदर जाकर मालूम करेंगे। इत्तेफाक की बात यह हुई कि अगले रोज इतवार का दिन था और दुकान बंद होनी थी। चुनाचा आलिम और वजीर ने मंसूबा बनाया कि वो कल दुकान में दाखिल होकर देखेंगे। अगले रोज दुकान बंद थी तो आलिम अपने साथ वजीर को लेकर पहुंचा। उसने दुकान के ताले तड़वा दिए और अंदर का जायजा लेने दाखिल हो गया। दुकान 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। पहले कमरे में मिठाई के शोकेस में सजी मिठाई और कुछ खाली टोकरे पड़े हुए थे। इसके बाद आलिम दुकान के दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो वो खाली था, मगर इस कमरे के दरमियान में एक चटाई बिछी हुई थी। आलिम को बड़ी हैरत हुई कि कोई मिठाई तैयार करने वाला सामान, बर्तन या दीगर अशिया कमरे में मौजूद नहीं। खैर, उसकी नजर फर्श पर पड़ी चटाई पर गई तो उसने वो चटाई हटाकर देखा कि उधर एक ढक्कन नुमा दरवाजा मौजूद है। आलिम ने हाथ बढ़ाकर उस ढक्कन नुमा दरवाजा को खोला तो क्या देखता है कि एक सीढ़ी नीचे जाने के लिए नस्ब है। आलिम उस सीढ़ी को पकड़कर नीचे उतरने लगा। उसके साथ वजीर भी सीढ़ी के जरिए नीचे उतरा। अब जैसे ये दोनों सीढ़ी से नीचे उतरे तो क्या देखते हैं कि एक और खाली कमरा मौजूद है। आलिम को फिर हैरत हुई कि ये क्या माजरा है। एक तो बंद, और जब बंद उसको हम खोल के जब अंदर आए हैं तो अंदर भी कुछ नहीं। इसको हैरत हुई। अब आलिम ने आंखें बंद की हैं थोड़ी देर के लिए। वजीर इसको देख रहा है तो आलिम ने एकदम आंखें खोली। अहमद नीचे देखता है, वहां भी चटाई बिछी हुई है। आलम के इशारे पर वजीर वो चटाई हटा देता है तो दोनों क्या देखते हैं कि सामने जमीन पर वैसा ही ढक्कन नुमा दरवाजा था जैसे ऊपर वाले कमरे में नस्ब था। इससे जाहिर हुआ कि इसके नीचे भी कोई तहखाना मौजूद है। आलम ने खुद आगे बढ़कर उस ढक्कन नुमा दरवाजा को खोला। वजीर थोड़े फासले पर खड़ा हुआ था। आलम ने जैसे ही ढक्कन नुमा दरवाजा खोला तो नीचे तहखाने से मिठाई की खुशबू का एक भपका निकला। बहुत ही तेज खुशबू बाहर आई। आलम ने अंदर झांका तो देखकर हैरत ज़दा रह गया कि नीचे तहखाने में मुकम्मल रोशन माहौल है और 5 लोग काले रंग की पोशाक पहने मिठाई तैयार कर रहे हैं।
उन सब ने काली पोशाकें पहन रखी थीं और उन लोगों के चेहरों पर नाक, कान और आंखें मौजूद नहीं थे। उनके हुलियों को समझकर आलम ने फौरन वो ढक्कन-नुमा दरवाजा बंद कर दिया। वजीर ने आलम से दरियाफ्त किया कि ये सब क्या माजरा है, नीचे क्या हो रहा है। आलम ने बताया कि नीचे मिठाई बन रही है और वो मिठाई तैयार करने वाले लोग कोई आम इंसान नहीं बल्कि वो जिन्नात हैं। वजीर ये सुनकर चौंक गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन है। खैर, आलम ने वजीर से कहा कि अब इधर रुकना बेहतर नहीं, यहाँ से वापस चलो। अब दूसरा दिन यानी पीर के दिन दुकान खुलनी है। पीर के दिन दुकान खुली है और आलिम वजीर को लेके बशीर हलवाई की दुकान पे पहुंचता है पीर वाले दिन, जिस दिन दुकान खुल चुकी है। आलम ने बशीर से कहा कि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम इतनी ज्यादा मिठाई कैसे बना लेते हो। मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ। बशीर ने आलम से कहा कि तुम मेरा क्या राज जान चुके हो, बताओ तो सही। आलम ने जवाब दिया कि तुम्हारी दुकान के नीचे एक तहखाना है और उस तहखाने के नीचे भी एक तहखाना है। इस मौके पर बशीर ने आलम को मजीद कुछ बोलने से रोक दिया और कहा कि बस चुप कर जाओ। आलम बोला कि मैं क्यों चुप रहूं, तुम मुझे बाकी की हकीकत और राज बताओ। बशीर ने कहा कि मैं ये राज तुमको नहीं बता सकता। इस पर वजीर ने कहा कि तुम हमें नहीं, ये राज बादशाह को बताओ, क्योंकि उनको तुम्हारे मुताल्लिक काफ़ी तशवीश है कि तुम इतनी ज़्यादा मिकदार में मिठाई अकेले कैसे तैयार कर लेते हो। इसके बाद ये तीनों बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं। बादशाह ने बशीर से सवाल किया कि मिठाई वाले, तुम अब अपना राज जाहिर करो। इस पर बशीर कहने लगा, हुजूर वाला, ये कई ज़माने पहले की बात है कि उस जगह पर मेरे परदादा की दुकान हुआ करती थी जिधर अब मेरी दुकान है। मेरे परदादा भी मिठाई बेचने का काम करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे परदादा इसी दुकान में बैठे हुए थे कि एक भूखा प्यासा शख्स मेरे परदादा के पास आया। उसने आकर मेरे परदादा से कहा कि जनाब, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ मिठाई खाने के लिए दे दें। मेरे परदादा ने जब उसे देखा तो अंदाजा कर लिया कि ये शख्स वाकई भूखा और प्यासा है। चुनाचे मेरे परदादा ने उस भूखे शख्स को सामने बिठाकर पानी पिलाया और उसके सामने मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयाँ रखकर कहा कि जितनी मर्जी मिठाई खानी है खा लो। वो भूखा शख्स उधर बैठे हुए परदादा की दुकान में रखी आधी से ज्यादा मिठाई अकेला ही खा गया। यानी उस भूखे शख्स ने अकेले ही कई 100 किलो मिठाई खा ली। मगर मेरे परदादा के माथे पर एक शिकन भी ना आई और उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से उस भूखे शख्स को सारी मिठाई खाने दी। जब उस भूखे शख्स ने मिठाई खा ली और उसकी भूख खत्म हो गई तो उसने परदादा की जानिब देखकर कहा कि आज तुमने मेरी प्यास भी बुझाई और मुझे पेट भरकर मिठाई भी खिलाई है। आज जो मिठाई तुमने मुझे खिलाई है वो सारी मिठाई मैं तुम्हारी नस्ल को खिलाता रहूंगा। परदादा उस भूखे शख्स की बात को सुनकर हैरत से पूछने लगे कि ये सब क्या माजरा है, मैं समझा नहीं। तो उस भूखे शख्स ने परदादा से कहा कि तुमने मेरी भूख मिटाई है, मुझे इस कदर ज्यादा मिठाई खिलाई है। जानते हो मैं कौन हूँ? परदादा ने कहा नहीं। तो उसने कहा कि मैं एक जिन हूँ और मैं अब तुम्हारी इसी शॉप में रहूंगा और सारी जिंदगी मिठाई खिलाता रहूंगा। उस जिन ने यकीन दिलाया कि अब उनकी दुकान में कभी भी मिठाई कम नहीं होगी, ना ही जायका कभी खत्म होगा। बशीर हलवाई ने अपनी बात जारी रखते हुए मजीद कहा कि बादशाह सलामत, आप यकीन करें या ना करें, आज तक ये इसी जिन का पूरा खानदान है जो मेरी दुकान में रहता है और मेरे लिए मिठाइयाँ तैयार करता है। जो जिन मेरे परदादा के जमाने में आया था, आज उसी की औलाद मेरी दुकान में मेरे लिए मिठाइयाँ बनाती है। ये बात सुनकर बादशाह समेत पूरा दरबार हैरत ज़दा रह गया, जिस पर बशीर हलवाई ने कहा कि आज मैंने बरसों पर मुहित ये खानदानी राज आप सबके सामने खोल दिया है। यूं बशीर हलवाई का तन्हा एक ही दिन में 1000 किलो मिठाई तैयार करने का राज फाश हो गया। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मजीद हौलनाक और सच्चे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल अनमोल हॉरर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपसे हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।
آپ کے کامنٹس اور لائکس ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے خوفناک واقعہ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ گڈ بائے۔